خبروں میں خوش آمدید کہتے ہوئے باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے لاہور سے جہاں پر لانگ مارچ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ لاہور لبرٹی چوک سے شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید نے لانگ مارچ میں شریک افراد سے حلف لیا ہے۔ عمران خان سمیت کارکنان کی بڑی تعداد لانگ مارچ میں شریک ہے۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ لاہور لبرٹی چوک سے شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید نے لانگ مارچ میں شریک افراد سے حلف لیا، جبکہ عمران خان سمیت کارکنان کی بڑی تعداد لانگ مارچ میں شریک ہے، جو کہ لبرٹی چوک سے یہ لانگ مارچ شروع ہوا ہے۔ اور اس آغاز کے ساتھ ہی پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید نے لانگ مارچ میں شریک افراد سے حلف بھی لیا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات کے لیے براہ راست موجود ہیں رانا شہزاد۔ رانا شہزاد، بتائیے گا اس وقت حلف بھی لیا ہے، حلف میں کیا باتیں کی گئی ہیں؟ آج جی بالکل اسی طرح سے لبرٹی چوک میں آزادی مارچ کے لیے عمران خان صاحب خود پہنچ چکے ہیں، اور آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ کنٹینر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھایا تو یہاں پہ عمران خان صاحب جس طرح سے خطاب کر رہے ہیں، ایک کراؤڈ ہے جمع غفیر ہے، یہاں پہ عوام کا بہت زیادہ رش ہے، یہاں پہ اپنے ٹائیگرز کو لے کے جو ہے اسلام آباد کی طرف یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد اس خطاب کے بعد جو اسلام آباد کی جانب روانہ ہوں گے، اور پاکستان بھر سے جو ہے کارکنان اور ان کے ٹائیگر جو اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد، تفصیلات بتا رہے تھے آپ۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے جو کہ لبرٹی چوک سے شروع ہوا ہے، اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس لانگ مارچ کے اندر کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں تھانہ سول لائن میں کے علاقے کچہری روڈ پر ملزم کی فائرنگ سے محمد ابراہیم نامی شخص قتل ہو گیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی، ملزم گرفتار کر لیا گیا، مقتول کو ایوان عدل کے سامنے قتل کیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پر ڈیرہ غازی خان تھانہ سول لائن کے علاقے میں کچہری روڈ پر ملزم کی فائرنگ سے محمد ابراہیم نامی شخص قتل کر دیا گیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی، ملزم گرفتار کر لیا گیا، مقتول کو ایوان عدل کے سامنے قتل کیا گیا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں جہاں پر تھانہ سول لائن کے علاقے کچہری روڈ پر ملزم کی فائرنگ سے محمد ابراہیم نامی شخص قتل ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف ڈیرہ غازی خان نذر خان بھٹی سے۔ جی نذر خان بھٹی، بتائیے گا تفصیلات کیا سامنے آئی ہیں؟ جی شکریہ۔ ایسا ہے کہ ڈیرہ غازی خان پیشی پر آنے والے نوجوان کو مخالف نے فائر کر کے قتل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد ابراہیم کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ ملزم کو پولیس نے موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ ملزم نے مقتول کو 5 فائر مار کر قتل کر دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری بات مقتول کے کزن حمید سے ہوئی، حمید کا کہنا تھا کہ میرا کزن سیشن کورٹ میں تھانہ چوٹی کے علاقے ایک قتل کے مقدمے میں عبوری ضمانت پر تھا، جس کی پیشی کے سلسلے میں وہ عدالت کے گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ ملزم شاہ نواز، جو وہاں پہلے سے ہی دھاگ لگائے بیٹھا تھا، اس نے دیکھتے ہی لگاتار 5 سے 6 فائر مار کر میرے کزن کو قتل کر دیا۔ اور جب ہماری پولیس سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ملزم کے ایک رشتہ دار کو مقتول اور اس کے عزیز نے 4-5 ماہ پہلے تھانہ چوٹی کے علاقے میں زمین کے تنازع پر قتل کر دیا تھا، جس میں ایک ملزم گرفتار تھا جبکہ مقتول عبوری ضمانت پر تھا۔ اور آج جب وہ رشتہ دار جب اس کا وہ آیا ملزم نے، تو اس کو دیکھتے ہی عدالت کے گیٹ کے سامنے فائر مار کر قتل جاں بحق کر دیا۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا عام طور پہ جہاں کچہریاں ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں ڈیرہ غازی خان جہاں سے تھانہ سول لائن کے علاقے کچہری روڈ پر ملزم کی فائرنگ سے محمد ابراہیم نامی شخص قتل ہوا۔ تفصیلات بتائیں بیورو چیف ڈیرہ غازی خان نذر خان بھٹی، آپ کا شکریہ۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے ٹوپاڈیک سنگھ سے، جہاں پر کے ڈی سی محمد ارشد بھدر نے ڈی سی آفس کے سبززار میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ڈی او فارسٹ کامران سلامت، انچارج شجرکاری مہم محمد شفیق، پرنسپل آفیسر بابر بشیر، پی اے ٹی او ڈی سی حاجی محمد عباس، ڈی آئی او محمد شہباز انصاری، اے او انفارمیشن الیاس اکرم سمیت سینئر صحافی بھی موجود تھے۔ ڈی سی ٹوپاڈیک سنگھ محمد ارشد بھدر نے مزید کہا کہ ٹوپاڈیک سنگھ کے تمام شہری زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر موسمیاتی تبدیلی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سیلاب کے بعد میرپور خاص کی تحصیل جھڈو کے گاؤں ساہن دادو میں
अब तक बारिश का पानी जमा है। तीसरी जमात के तलबा और उसके नन्हे भाई के लिए हुसूल तालीम में बारिश का पानी रुकावट बन गया, जबकि इस सिलसिले में उन्होंने इस पानी को रुकावट को हटाया। और इस बारे में मजीद रिपोर्ट करें मीरपुर खास से अवीज़ रजा अपनी इस रिपोर्ट में। सैलाब ने सिंध में बड़ी तबाही मचाई। मीरपुर खास जुड्डो का गांव साईंदाद अलियानी भी शदीद मुतासिर हुआ। हर तरफ फैला पानी इस नन्ही तालबा और इसके भाई के दिल में रोशन इल्म की शमा की लू को न बुझा सका। तीसरी जमात की तलबा हफीज़ा और उसका भाई अब्दुल्ला रोजाना कई फीट पानी में से गुजर कर आरजी स्कूल पहुँचते हैं। हमारे गांव में सैलाब आ गया था। हमारे घरों में अभी भी पानी है, पर मुझे पढ़ने का शौक था, इसलिए मैं इतने पानी में आती हूँ। मेरा भाई भी मेरे साथ आता है, मैं उसे कंधे पर लेके आती हूँ। यहाँ पर स्कूल खुला है, हम वहाँ पर पढ़ने आते हैं। खेमा स्कूल के असातिज़ा का कहना था कि तलबा को स्टैंड और तालबात को मदरसे में तालीम फराहम की जा रही है। एनजीओज़ ने हमें एक बॉयज़ स्कूल के लिए टेंट दिया है और गर्ल्स स्कूल में जो बच्चियां हैं वो इस टाइम मदरसे में जो कायम थोड़ी जगह बची है उसमें तालीम अपनी हासिल कर रही हैं। और हमारे गाँव की जो स्कूल हैं वो इस वक्त भी पानी में हैं। मीरपुर खास की तहसील जुड्डो के स्कूल ताहाल बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। हालिया सैलाब ने हर जगह तबाही और बर्बादी फैलाई है, मगर सैलाबी पानी इन बाहिम्मत बच्चियों के असूल इल्म के जज्बे को शिकस्त नहीं दे सका, जिसकी एक मिसाल हफीज़ा भी है। अवैस रज़ा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। पाकपतन पुलिस ने लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लूट मार करने वाले 2 गैंग्स के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद तौसीफ हैदर की सरबराही में थाना मलखास के SHO आशिक ने कार्रवाई करते हुए लूट मार की वारदातें करने वाले जदीद असले से लैस 2 चोर गैंग्स के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 15 मोटरसाइकिलें, 4 रिक्शे और जेवरा समेत 35 लाख मालियत का सामान बरामद किया गया। मुलजिमान पुलिस को 50 से ज्यादा वारदातों में इंतहाई मतलूब थे। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में तामीर किया जाने वाला पुल टूट फूट का शिकार हो गया है। हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ नजर खान भट्टी वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के इलाके सकी सरवर, जो डेरा गाजी खान शहर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हम मौजूद हैं सकी सरवर पुल पर, जो कि अभी ये तामीर की गई है, जिसको आज से कबल कोई 5 से 6 महीने हो गए हैं। इन महीनों में ये पुल जो है तकरीबन 10 से 12 बार है जो टूट फूट का शिकार हो चुकी है और इसको दोबारा मुरम्मत की गई है। मैं आपको तफसीलन बताता चलूँ कि ये एक ही रास्ता है जहाँ से मेन गाड़ियाँ गुजरती हैं, जो कि बलोचिस्तान, रकनी, फोर्ट मंडरू, सकी सरवर इस साइड को जाती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन गाड़ियों में रोड़ा, बिजली, सबेस वगैरह जो लोड की जाती है वो, और ये जो गाड़ियां हैं कई वजन उठाकर इस पुल से गुजरती हैं। मगर ये जो पुल है इसमें जो मल्टीयर इस्तेमाल किया गया है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जो कि ठेकेदार का मुंह बोलता करप्शन का सबूत है। यहाँ पर इंतहाई करप्शन की गई है। सवाल इंतजामिया और महकमे पर उठता है कि वो अब तक खामोश क्यों है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हमारी इलाका मकीन से बात हुई है, उनका कहना था कि ये जो पुल है ये तकरीबन कई बार टूट चुका है और यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और वो रास्ता ना होने की वजह से, पुल के टूट फूट के शिकार होने की वजह से यहाँ कई घंटों तक गाड़ियाँ रुक जाती है। ये रोड ब्लॉक हो जाता है। रोड ब्लॉक होने की ये वजह है कि ये सिर्फ एक ही रास्ता है जो बलूचिस्तान, रकनी, फोर्ट मंडरू में जाता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ से जो भी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो ये पुल जो है ये झोल मारना शुरू कर देता है। ये किसी टाइम भी नुकसान का बायस बन सकता है। पुल है इसको दोबारा तामीर किया जाए ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम कैंसर अस्पताल लाड़काना में ख़वातीन में छाती के सरतान के हवाले से आगाही तकरीब और वॉक का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर कैंसर अस्पताल डॉक्टर अब्दुल समद शेख का कहना था कि पाकिस्तानी ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का मर्ज तेज़ी से बढ़ रहा है और नौजवान ख़वातीन भी इसका शिकार हैं। हेड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर इनम नाज का कहना था कि ख़वातीन इब्तदाई अलामात को नज़रअंदाज करती हैं और मर्ज के स्टेज 3 या 4 पर पहुँच जाने के बाद अस्पताल का रुख करती हैं, तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। मंडी बहाउद्दीन का सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हो गया। खातून को ज़चगी के लिए THQ के गायनी वार्ड में लाया गया था, जिस पर मुतासरा खातून की वालदा ने शिकायत की कि 4 घंटे सड़क पर इंतजार किया गया। तकलीफ ज़्यादा होने पर दोबारा अस्पताल लाए। हमारा बच्चे डॉक्टर्स और अस्पताल अमले की मुबैना गफलत, लापरवाही की वजह से जाँ बहक हुआ और यहाँ पर अस्पताल में मौजूद तमाम स्टाफ बदतमीज़ गैर अखलाकी रवैया इख्तियार कर रहा हुआ है।
عمرکوٹ میں سندھ کے شاعر جمن دربدر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پریس کلب پر تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شاعر، ادیب، قوم پرست رہنماؤں، صحافیوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ جمن دربدر کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ان کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں تاج جویو، میر حسن آریسر، گل منیر لہاری، ارباب بھیل، عبداللہ کھوسو، عبدالکریم منگریو، عمران شاہ، ریحان شبیر شاہ، امین میمن سمیت دیگر نے شرکت کی۔ رینالہ خرد میں سالانہ عرس حضرت بابا سعید احمد سیال کے موقع پر تماشے دار کبڈی کا شاندار میچ منعقد ہوا۔ کبڈی میچ میں پاکستان کے نامور کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی۔ رینالہ خرد کے نواحی گاؤں 21 پنجاب کی ثقافت اور پہلوانوں کے دلچسپ کھیل تماشے دار کبڈی کے میچ کا انعقاد کیا گیا۔ کبڈی میچ انٹرنیشنل کھلاڑی اختر خان پٹھان اور شفیق احمد چشتی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ کھلاڑیوں کے میدان میں اترتے ہی پنڈال میں بیٹھے تماشائیوں نے بھرپور تالیوں کے ساتھ ان کا پرجوش استقبال کیا۔ کھلاڑیوں نے میچ میں اپنے نئے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھوبی پٹڑے بھی مارے، جس پر تماشائیوں نے دل کھول کر داد دی۔ شفیق احمد چشتی ٹیم نے جیت اپنے نام کر لی۔ ٹینڈر جام سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں پر بیچ میں دن دہاڑے اسلحے کے زور پر تاجر ایشور دیوان کی آئل ایجنسی پر ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے۔ ڈکیت لاکھوں روپے لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ شہری تماشا دیکھتے رہ گئے۔ اب تک ہونے والی کئی وارداتوں میں پولیس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ فیس بک کی محبت شادی تک پہنچ گئی۔ لندن کی خاتون میاں چنو پہنچ گئی ہیں۔ اعظم کی کرسٹینا کے ساتھ فیس بک پر 1.5 سال قبل دوستی ہوئی۔ کرسٹینا نے اسلام قبول کر لیا۔ نیا نام ایمان فاطمہ ہے۔ فیس بک دوستی نکاح میں بدل گیا، جبکہ نومیاتا جوڑا شادی پر بہت خوش ہے۔ لڑکے کے اہل خانہ کی طرف مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمان فاطمہ کا کہنا ہے کہ وہ بہت خوش ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں۔ اے ایس پی ریون بلال محمد سلہری شہید ڈی آئی جی کامران یوسف پہنچ گئے، جبکہ ایس ایچ او ریون فاروق اعظم اور انچارج چوکی بلاٹ بھی ہمراہ تھے۔ اے ایس پی ریون بلال محمد سلہری نے بچے کو تحائف پیش کی ہے اور شہید کی بیٹی 3 سالہ عالیہ کامران کو اسکول چھوڑنے کے لیے ساتھ لے کر گئے۔ اسکول انتظامیہ اور اساتذہ نے بچی کا استقبال کیا، جبکہ اس موقع پر ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ 2019 میں دوران ڈیوٹی لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ حیدرآباد میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی جانب سے بچوں پر تشدد اور اس کے روک تھام کے سمیت ان کے حقوق کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عمران خان اس رپورٹ میں۔ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی جانب سے بچوں پر تشدد اور اس کی روک تھام سمیت ان کے حقوق کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس حیدرآباد میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر رضا محمد میمن نے خصوصی شرکت کی۔ ایک اویئرنیس سیشن کیا گیا تھا جس میں ہم چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے بارے میں اویئر کیا گیا۔ اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، جس میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، سیف ہاؤس کے انچارج، سوشل ویلفیئر کی مختلف آرگنائزیشن، میڈیا پرسنز، جن کو ہم نے اویئر کیا کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی ورکنگ کس طرح ہے۔ یہ جو بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بچوں کے مختلف مسائل ہیں، جو بچے جو ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو بہت ایشوز چیلنجز فیس کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہاں پر بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی۔ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے اجلاس میں قائدین شہر، محکمہ سماجی بہبود کے افسران، این جی اوز کے نمائندوں، وکلاء اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایم او یو پر دستخط بھی کیے گئے۔ جو بھی اس میں وکٹم ہے، معصوم بچے جن کے ساتھ جبری مشقت ہے، سیکسچول ایبیوزڈ ہے اور مختلف طریقوں سے جو پریشانیوں کا شکار ہیں بچے، ہم ان کی آواز بن کے ان کو جب تک مکمل انصاف فراہم نہیں ہو جاتا
हम उनके लिए मुकम्मल काम करने का इरादा रखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि केसेस को और जो मामलात बच्चों के हैं, बच्चों के राइट्स हैं, उनके साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए प्रिवेंशन कैसे की जाए, क्योंकि जब तक प्रिवेंशन नहीं होगी, रोकथाम नहीं होगी, तब तक ये मामलात होते रहेंगे हमारी सोसाइटी में। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हैदराबाद बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए काम कर रहा है और उनके हुकूक को उजागर कर रहा है। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। खबर देंगे आपको रायगढ़ से। रायगढ़ शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से आम आदमी के साथ साथ दिहाड़ीदार तबका भी इंतहाई परेशान है। मजीद जानते हैं रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की शरह ज़्यादा होने की वजह से जहां आम आदमी परेशान है, वहां पर दिहाड़ीदार तबका भी इस वक्त इंतहाई परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायगढ़ सब्जी मंडी में। अगर यहाँ पर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियां इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से कि सब्जियों के रेट इस वक्त जो है ना वो आसमानों पर लगे हुए हैं। आप तो लोग तो जो है वो बाहर का पानी यूज कर सकते हैं, गरीब लोग जो है ना वो एक गोभी का फूल लेने को तरस रहा है। 10 रुपए किलो वाली गोभी जो है ना वो 150 रुपए किलो में मिल रही है। 10 रुपए किलो वाला टमाटर जो है ना 200 रुपए किलो में मिल रहा है। आपसे गुजारिश है मियाँ साहब को मेहरबानी करें, गरीब आवाम सब्जी लेने के लिए तरस रही है कि हमें एक वक्त की हम सब्जी जो है ना वो मिल जाए। पुदीने से रोटी खाना जो है ना वो देख रहे हैं कि पुदीने की गुटी से जो है ना वो हम लोग खाना खाएं। मेहरबानी करें, रिक्वेस्ट है आपसे कि जो है ना वो प्याज इस वक्त किस रेट पे पहुंचा हुआ है। 500 रुपए दड़ी पे प्याज पहुंचा हुआ है। अदरक का रेट चेक करें, टमाटर का रेट चेक करें कि महंगाई आसमानों को छू रही है। खुदा का खौफ खाएं, मुल्क जो है ना वो महंगाई बहुत ज्यादा है। कम से कम इतना देखें कि गरीब बंदा जो है ना वो गोभी तो ले ले। गोभी भी इस वक्त जो है ना वो भी खरीदी नहीं जा सकती। मौजूदा हालात के मुताबिक जो सब्जी है ना वो गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। अभी गरीब का जो चूल्हा है ना वो चलना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले जो यही सब्जी जो 30-40 या 50 रुपये होती थी, अब मामूली सी सब्जी जो है वो 150-200 से नीचे नहीं है। आप एक गोभी को ले लो, गोभी अभी जो 200 के करीब जो है ना उसके सेल हो रही है। जैसा टमाटर है 250-300, प्याज है वो 300-400 करीब जा रहा है। तो गरीब को कैसा गुजारा होगा? मौजूदा हुकूमत को गरीबों को कुछ रहम करना चाहिए। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि इस वक्त सब्जियों के रेट में 200 से 300 गुना इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम इंतहाई परेशान हैं। हमारी हुकूमत वगैरह से अपील है कि खुदारा इस सब्जियों के रेट को कंट्रोल किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। शहनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर देंगे आपको थाना शोरकोट से, जहां पर KSI गुलाम शबीर ने खुद की ही अदालत लगा ली, जबकि इस सिलसिले में उन्होंने आए रोज़ आवाम को नाजायज़ तंग भी करना शुरू कर दिया है। मौसूफ का वतीरा बन चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान नज़र से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हुकूमतें बदली, वर्दियाँ बदली, लेकिन जो है पंजाब पुलिस का रवैया वो ना बदला। लोगों को बेइज्जत करते करते अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि वकला के साथ जो है तसादुम भी पुलिस का आए रोज़ का वतीरा बन गया है। हर रोज़ जो है हमें ये वाक़या सुनने को मिलते हैं कि पुलिस का जो है दाखिला बार रूम में बंद कर दिया गया, कोर्ट रूम में। इससे अवाम जो है वो जलीलो ख्वार हो जाते हैं। मेरे साथ जो है ज़फ़रुल्लाह सियाल एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो एक फैमिली कोर्ट के मैटर के सिलसिला में अपना जो गुलाम शबीर ASI है उसके पास गए हैं। उसने इंतहाई नामुनासिब रवैया अपनाया। मेरे साथ वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से मुझे क्या बताएंगे। 5 बजे सनाना के पास गया हूँ, उसको बताया है कि जो है ये जो इनका मैटर है वो फैमिली मैटर है। तो उस पर जो उसका रिएक्शन आया वो इंतहाई गलत था। उसने उस सईद को प्रेशराइज करने के अलावा उसको थप्पड़ भी मारे। तो जो है ये जो आजकल के जो IO बने हुए हैं, ये लोगों को तंग करने के लिए वो दरखास्तें डील करते हैं जिनका उनको इख्तियार भी नहीं होता है। तो मैं जो गुजारिश अल्लाह हुक्म से गुजारिश करता हूँ, IO हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको काफिर कदार तक पहुँचाना चाहिए। जी जैसा कि आपने जो है वकील साहब की बात सुनी, मेरे मुवक्किल के साथ और मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। जी
खबर देंगे बहावल नगर से, जहां पर चेकिंग के दौरान मुलजिम के कब्जे से आइस बरामद कर ली गई है। मुलजिम अरसे दराज से आइस इस्तेमाल और फरोख्त कर रहा था। मुलजिम को थाना सिटी बी डिवीजन बहावल नगर में मुकदमा दर्ज करवा कर पाबंदी से सलासल करवा दिया गया है। इंचार्ज पोस्ट राव इरफान ने कहा है कि पेट्रोलिंग निगरानी पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगी। सेवन शरीफ के नवाही इलाके टंडो रहीम खान से लोहे बलूचिस्तान का रास्ता अभी तक न बन सका। अली बख्श जमाली, अब्दुल कादिर, आरिफ जमाली और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती नुमाइंदगान ने अभी तक कोई भी सहूलत नहीं दी है। हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाके लोही और टंडो रहीम खान से मिलाने वाले रास्ते को मुस्तकिल तौर पर बनाया जाए, लेकिन हमारी कोई भी सुनने को तैयार नहीं। बीमारियों में हम शहर तक नहीं पहुँच सकते। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि टंडो रहीम खान से लोही का रास्ता बनवा कर हमें सहूलियात फराहम की जाएं। अगोगी की अहम शाहराहों पर आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए हैं। आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी खौफ हरास में मुब्तला हो गए हैं। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली इमरान से। जी अली इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गोकी के गेदोनवा में अहम शाहराहों पर आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए हैं। आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी खौफ और हरास में मुब्तला है, लेकिन इंतजामिया आवारा कुत्तों को तल्फ करने में नाकाम दिखाई दे रही है। महलों चौकों चौराहों में घूमने वाले आवारा कुत्ते कभी भी किसी को काट सकते हैं। खासतौर पर स्कूल औकात पर बच्चे भी इन आवारा कुत्तों से खौफजदा दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। उगोगी और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है परेशानी है। ख़ास तौर पे स्कूल के टाइम पे बच्चों को काट लेते हैं और घरों से निकलना जो है वो मुहाल हो गया है। मेहरबानी फरमाकर हॉस्पिटल्स में इसकी वैक्सीन भी नायाब हो चुकी है। गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हॉस्पिटल्स में वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड की जाए और आवारा कुत्तों को तलब किया जाए, ताकि शहरी जो हैं वो सौख का सांस ले सकें। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि शहरी का कहना है कि आवारा कुत्तों को तल्फ किया जाए और इनकी जो वैक्सीन है उसको यकीनी बनाया जाए। जी पाकपतन थाना सिटी की हुदूद मोहल्ला सैयद जलाल में अकरम कबाड़िया नामी शख्स के भाई की रस्म हिना पर फहश रक्स और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी रात भर जारी रही। मोहल्ला सैयद जलाल नेक मोहम्मद की छत पर खुलेआम फहश रक्स और शराब का इस्तेमाल जारी रहा। पुलिस इस पर ना रुकवा पाई और पुलिस कारकर्दगी पर यह सवालिया निशान लगा गई। अवाम का कहना है कि डीपीओ पाकपतन को नोटिस लेना चाहिए। लोधरा पुलिस अफसरान और दीगर मुलाजिमीन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान में तारीफी असनाद और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए हैं। तकरीब में जिले भर में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले DSPs, SHOs, तफ्तीशी अफसरान और कांस्टेबल्स ने शिरकत की। डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम का इस मौके पर कहना था कि मेहनती, ईमानदार और फर्शनास पुलिस अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। पुलिस अफसरान में अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट और नक़द तकरीब इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। अफसरान का मोराल बुलंद होगा, जबकि महकमा पुलिस में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। कहरोड पक्का से आपको खबर देंगे। कहरोड पक्का PHMA लोधरा की जानिब से मिलाद मुस्तफ़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में 900 के करीब मरीजों का फ्री चेकअप और अद्वियात फराहम की गई, जबकि कैंप के मेहमान खुसूसी नवाब रजीउल्लाह खान और डॉक्टर शौकत अली एजाज CEO हेल्थ थे। कैंप में डॉक्टर अजहर नवीज, सदर अल्लामा मोहम्मद अकरम चिश्ती, चौधरी बरकत अली रियाज, डॉक्टर मुनीरुद्दीन, प्रिंसिपल हेलन डॉक्टर जाहिद हुसैन मिर्जा, डॉक्टर शेख मोहम्मद इस्लाम शाकिर, डॉक्टर मियां कलीम अकबर और उनकी पूरी टीम ने ड्यूटी सर अंजाम दी। नवाब रजीउल्लाह खान और डॉक्टर शौकत अली एजाज ने बेहतरीन कारकर्दगी पर डॉक्टर्स में शील्ड तकसीम की। से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। जैकबाबाद के नवाही गांव मुनीर अहमद लांगो में बारिश का पानी काफी अरसे से 4 से 5 फीट खड़ा है। मकीन खुले आसमान तले बेयार और मददगार रोड पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन जिले इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी ना हो सकी, जबकि इलाके मकीनों का कहना है कि बारिश को काफी अरसा गुजर गया है, जबकि मलेरिया, टाइफाइड, गैस्ट्रो जैसी मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया है।
जामशोरों के गांव पहलवान खान कोसों में मस्मार किए जाने वाले घरों की तामीरात और मरम्मत के लिए 30 रोज़ा कैंप कायम किया गया है। कैंप की इब्तदाई वफाकी वजीर साजिद नूरी ने किया है। तफसीलात बता रहे हैं रियाज मीर। मौजूद हैं जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के तहसील मांझंद के करीब पहलवान खान खोसो गोट में, जहां पर PWF की जानिब से रिलीफ कैंप लगाई गई है, जहां इंटरनेशनल लेबर वर्कर के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पर मज़ीद डॉक्टरों की टीम भी इनके साथ मौजूद है और इन्होंने एक नई चीज़ यहाँ पर की है कि जो गांव मुतासर हुआ है, 30 से 40 घर यहाँ पर मुतासर हुए हैं, जो भी रिप्लेस करवा रहे हैं वो यहाँ के खुद के जो मालकान हैं घर के, उन्हीं से करवाया जा रहा है। उन्हीं को अजरत दी जा रही है कि ताकि वो अपनी ज़िंदगी सही बसर कर सकें। और इनका ये मैसेज है कि ऐसी काफ़ी बड़ी तंजीमें हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और मज़ीद काम करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टरों की जानिब से मज़ीद मलेरिया और स्किन की बीमारियों के हवाले से टेस्ट किए जा रहे हैं, बच्चों को देखा जा रहा है, दवाइयाँ मुफ्त दी जा रही हैं और ये मज़ीद तंजीम 1 महीने के लिए यहाँ तक काम करेगी जब तक ये घर मुकम्मल तौर तक बन नहीं जाते। जी आपको बताएं कि सुकून और आरामदेह नींद के लिए मयारी फोम फराहम करने वाला मारूफ ब्रांड डायमंड सुप्रीम फोम ने डिफेंस फेज 6 में अपने एक और शोरूम का इफ्तिताह कर दिया है, जबकि जहां पहले आएँ और पहले पाएँ की खास ऑफर के साथ खरीदारी पर सार्फिन को 40% तक का बड़ा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। पुरसुकून और आरामदाह नींद के लिए सार्फिन की पहली तरजीह डायमंड सुप्रीम फॉर्म। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 बुखारी कमर्शियल में डायमंड सुप्रीम फॉर्म ने अपने एक और शोरूम का इफ्तिताह कर दिया, जिसके बाद वहां के रिहायशियों को एक ही छत तले मुख्तलिफ वैरायटी के सस्ते फॉर्म मैसर आ सकेंगे। शोरूम का इफ्तिताह ताजर रहनुमा अतीक मीर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आगा अली खान और दीगर ने रिबन काट कर किया। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आगा अली खान और जनरल मैनेजर शकील रब ने कहा कि हम अपने सार्फिन के लिए मयारी और सस्ते प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। पाकिस्तान में ये हमारी ऑलमोस्ट अब 850-900 दुकानें हो चुकी हैं, जहां पे आपको डायमंड के प्रोडक्ट्स, डायमंड फोम के प्रोडक्ट्स हर कीमत में बेहतरीन क्वालिटी के मिलेंगे। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, वो आए हमारी दुकानों पे आके शॉपिंग करें। आउटलेट खोलने का हमारा जो इरादा बना वो यहाँ की बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी भी बुखारी कमर्शियल एरिया में फर्नीचर मार्केट है, उन सब की काफ़ी डिमांड थी कि इनके पास कहीं भी कोई एक्सेस मौजूद हो जहाँ पर वो कस्टमर्स को डाइवर्ट करें और वहाँ पर आकर के वो अपनी पसंद, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डायमंड के प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर सकें। ताजर रहनुमा अतीक मीर बोले कि ये कामयाबी की तरफ इशारा है। हमें फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा डायमंड फोम की सूरत में मौजूद है, जिसने एक नित नई अपनी जहद, तरक्की और ईजादात के ज़रिए इस मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। जिस तरह इस मुल्क में वो जो आइटम्स कभी हम इंपोर्ट करते थे और कसीर ज़र मुबादला हमारा ज़ाया होता था, आज हम देख रहे हैं कि वो मुल्क में उससे बेहतर क्वालिटी में डायमंड फोम जैसे इदारे बना रहे हैं। शोरूम पर पहले आए और पहले पाए की शानदार ऑफर्स के साथ खरीदारी पर सार्फिन को खुसूसी डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। मुनक्किदा तकरीब में डायमंड सुप्रीम फॉर्म की जानिब से केक भी काटा गया। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ अमर इसाक, मेट्रो न्यूज, कराची। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि साबिक सूबाई वजीर मेंबर सूबाई असम्बली सैयद समसाम अली शाह बुखारी की क़यादत में सैकड़ों अफराद का काफिला इमरान खान के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए रवाना हो गया है। लाहौर लॉन्ग मार्च में रवानगी से कबल सैयद समसाम अली शाह बुखारी और महर मोहम्मद जावेद का कहना था कि इमरान खान एक सच्चा और महबूब वतन लीडर है, उसका साथ देना है और हकीकी आज़ादी पाकिस्तान के लिए हासिल करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी अहदेदार इनायत इमरानी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लाड़काना में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी अहदेदार इनायत इमरानी पेश हुए, जहां पर अदालत ने जमानत पेश करते हुए इमरान पुलिस को गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। इनायत इमरानी ने चांडका अस्पताल में तोड़ फोड़ करके डॉक्टर जुनेश सांडारो को जख्मी किया था।
मुरीद के जीटी रोड पर पुलिस वर्दियों में मलबूस एहलकारों ने निजी चैनल के रिपोर्टर राना जाफर पर तशद्दुद किया और सामान लूट कर फरार हो गए हैं। तशद्दुद और पैसे छीनने वाले पुलिस एहलकारों की वर्दी पर निसार ऐसा ही लिखा था। सब इंस्पेक्टर निसार थाना सिटी में लाहौर में तैनात बताया जाता है। सहाफियों ने थाना सिटी के सामने एहतजाज करते हुए वारदात के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। ओबाड़ो के नवाही इलाके रावंती में बारातियों की फायरिंग से शादी में शरीक नौजवान गोली लगने से जाँ बहक हो गया है। शादी की तकरीब के दौरान बारातियों की हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से नौजवान इमरान मलिक चल बसा। मुतवफ़्फ़ी की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है। कश्मीर में नवाही गांव हाजी अब्दुल फतह खुसो से 50 साल नामालूम खातून की तशद्दुद लाश बरामद की गई है। अहले इलाका ने लाश को देखकर पुलिस को इतला दी है। कश्मीर पुलिस ने जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर खातून की लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल कश्मीर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक खातून को बेरहमाना तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। खातून की लाश को खेतों में फेंक दिया गया। ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका और न ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जहानिया में रेस्क्यू गाड़ियों की मुनासिब देखभाल न होने से एम्बुलेंसेस खटारा हो गई हैं, जबकि एम्बुलेंस सर्विस मुतासर होने से शहरी लोडर्स रिक्शों पर मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। जहानिया में रेस्क्यू सेंटर पर मुबैना तौर पर करप्शन का गढ़ बन गया है। मुखैर हजरात से लाखों रुपए अतिया लेने के बावजूद गाड़ियों की मुनासिब देखभाल नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से गाड़ियां खटारा बन चुकी हैं। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस को धक्का लगाकर स्टार्ट किया जाता है, इसके बाद मरीजों को मुंतकिल किया जाता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासर हो रहा है। मरीजों को रोडर रिक्शे और गदा गाड़ियों पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से बेशतर मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन गुजरावाला मोहम्मद वसीम डार की हिदायत पर मनशियात सप्लायर और नाजायज असलाह रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मनशियात सप्लायर और नाजायज असलाह रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 7 किलो से जायद चर्स, 6 किलो 360 ग्राम अफीम, 420 ग्राम हेरोइन और 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। एसएसपी पेट्रोलिंग मोहम्मद वसीम डार का कहना है कि नौजवान नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए मनशियात और नाजायज असलहे से पाक माशरे की तश्कील में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। जून के नवाही गांव भंडर में बाबा सिकंदर लजपाल वाली सरकार के 22वें उर्स के मुकाबले और मेले का इख्तिताम हो गया है, जबकि 2 रोज़ा उर्स मुबारक और मेला ज़ेर सरपरस्ती मास्टर मलिक नूर मोहम्मद और ज़ेर निगरानी मलिक शम्स अली खान के दरबार आलिया बाबा दा सरकार और बाबा सिकंदर सरकार पर मुनक़िद हुआ, जिसमें शूटिंग वॉलीबॉल का मैच मुनक़िद हुआ, जिसके मेहमान सियासी और समाजी शख्सियत मलिक अबरार अहमद एडवोकेट, मलिक सज्जाद एडवोकेट और मलिक बहादुर खान थे। उर्स मुबारक दूसरे रोज़ मेहमान खुसूसी में पीर सैयद अली शाह ऑफ मंडी बहाउद्दीन ने बाबा रोडा सरकार और बाबा सिकंदर बादशाह की कब्र मुबारक पर हाजिरी देते हुए फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की, जिसके बाद हिल रोड के मुकाबले हुए और इसी दौरान बैल दौड़ के मुकाबले भी हुए, जिसके बाद इख्तिताम पर जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। सरा आलमगीर में ऑल पंजाब मेला घोड़ा डांस का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों से 100 से जायद नामवर घोड़ों ने हिस्सा लिया। सरा आलमगीर के नवाई गांव पटी राजगान में ऑल पंजाब मेला घोड़ा डांस का इनेकाद किया गया। इलाके की आवाम को तफरीह मुहैया करने के लिए ओवरसीज़ रहनुमा राजा जावेद अख्तरियो के ने ऑल पंजाब मेला घोड़ा डांस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि यह घोड़ा डांस हमारी सकाफत का हिस्सा है। ऑल पंजाब मेला घोड़ा डांस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले घुड़सवार साजा को मोटरसाइकिल इनामात में दी गई, जबकि घोड़ा मालिकान को नकद इनामात और ट्रॉफियां भी दी गई। मंडी बहाउद्दीन में यौम सियाह कश्मीर मनाने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, रैली निकाली गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मलिक अब्बास जुल्करनैन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत के गासिबाना कब्जे और मजालिम का नोटिस ले 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान बिलखुसूस मंडी बहाउद्दीन के अवाम कश्मीरियों के हक में उनके हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं। जड़ावाला में सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा म्यूनसिपल कमेटी ग्राउंड में अदा कर दी गई है, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कमेटी ग्राउंड में इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद जनाजे में शरीक अफराद से बात कर रहे हैं।
شہید ارشد شریف صاحب کا کمیٹی گراؤنڈ جڑاوالا میں نماز جنازہ غائبانہ ادا کر دیا گیا. میرے ساتھ سیاسی رہنما پی ٹی آئی کے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ارشد شریف شہید پورا جڑاوالا سوگوار ہے. انشاءاللہ تعالی جو ارشد شریف نے قربانی دی ہے اس شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا, یہ انقلاب آئے گا. جس طرح سینئر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. شہید کا جنازہ تو ہو گیا. جی یہ بڑے دکھ کی گھڑی ہے اور غم کی گھڑی ہے کہ ارشد شہید جو ہے وہ ملک پہ شہید ہوا ہے. حق سچ کی بات کرنے والا عظیم جرنلسٹ تھا اور یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ صرف قاتل جو بھی ہیں ان کو سامنے لایا جائے, بے نقاب کیا جائے. صوبائی وزیر میرے ساتھ موجود ہیں سابق, ان سے جانتے ہیں. ارشد شریف کو اللہ تعالیٰ شہادت کے بلند درجات عطا فرمائے اور حکومت سے اور ارباب اقتدار سے اور جو ہماری قوتیں ہیں, اصل قوتیں ہیں, ان سے مطالبہ ہے کہ اس کے جو قاتل ہیں ان کو فوری طور پر بے نقاب کر کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. غیر ملکی طاقتیں نہیں چاہتی پاکستان میں امن ہو, وہ پاکستان کو اور ہماری مسلح افواج کے ساتھ لڑانا چاہتی ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سازش کو ناکام بنائیں گے. شہرنامے سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.